Chitra has 25 years plus experience in this healing space, and she inspires everyone around her with her authenticity, presence, and her wisdom. She's So that is spirituality. You're honest with yourself. Be true unto yourself, and your truth shall set you free. moved to spirituality only when through pain, or does all or spirit one can also become spirituality? Can it arise through joy also? Whenever we are in ignorance, तो हम सारी उंगलियां हमारी दूसरों पे पॉइंट करती हैं, प्रोजेक्शन में रहते हैं, हम सारी प्रॉब्लम वर्ल्ड में दिखाई देती हैं, है ना? तो एक तरह से आप बड़े खुश हो क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे अंदर है, जो भी मैं बाहर देख रही हूँ वो मेरे अंदर है। अभी वो ड्राइविंग सीट में बैठा है कि अभी वो पीछे पैसेंजर सीट में सो रहा है, दैट्स अ डिफरेंस है। Everyone, and welcome to another episode of Growing Deeper Together with Chitra. I'm Shikha, and today is a very special conversation for me as I have the privilege of discussing spirituality with my own mentor, Chitra, and someone who's been guiding me from the beginning on my own journey. Chitra has 25 years plus experience in this healing space, and she inspires everyone around her with her authenticity, presence, and her wisdom. She's someone who truly walks the talk in everyday life, and it's like my honor to have you discuss this with me today. So, welcome, Chitra, on our podcast. So thank you, Shikha. Yes, spirituality. I'm glad I'm discussing this topic with you because this is a new thing for you to tune into. Yeah. Chitra, we hear this word so much. It's the new buzzword around. Everyone's talking about spiritual and being spiritual, getting into spirituality, learning what spirituality is. But today I'd like to understand from you what is spirituality beyond the real, what is the real spirituality? What does it really mean beyond the buzzword? So, Shikha, you asked this question, but you yourself are a living example of not following this buzzword. In many of our classes, you're very, upfront कि मेरा नहीं होता है डिवाइन से कनेक्शन, मुझसे नहीं होता है ये, आई बाओ, मुझसे नहीं होता है ये ग्लोरी। तो आई थिंक दैट इज द स्पेस जिसे हम कहते हैं रियल। यू बी रियल, you're authentic. It doesn't mean कि रियल में किसी का नहीं हो रहा है कनेक्शन, हो रहा है। जिसका हो रहा है उसकी वो रियलिटी है, और जिसका नहीं हो रहा है उसकी वो रियलिटी है। एंड टू ऑनर दैट रियलिटी फॉर मी इज एक्चुअली ऑनरिंग योर स्पिरिट। कोई प्रिटेंस नहीं है, कोई यू नो लाइक यू कैन हैव एस्पिरेशन, यू कैन हैव सीकिंग, बट कि आई हैव अराइव्ड और मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, तो आपका तो बिल्कुल भी वो नहीं है। सो दैट फॉर मी इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्पेस। Thank you, Chitra. As you say this, in each class or interaction that we have, it gives me the strength to come up with my own authenticity, because I see you living that talk every day. So, it somewhere inspires me also, like, to be honest with myself first. So that is spirituality. You're honest with yourself. Be true unto yourself, and your truth shall set you free. I see. हमें अपने ट्रूथ का ढिंडोरा नहीं पीटना है। और हम कल बात कर रहे थे कि आप भी पिता हो और मैं भी पिता हूँ, वात पित्त हैं हम लोग। तो पिता की तो क्वालिटी है ट्रूथ। सन की सैल्यूटेशन करते हैं हम, सन पिता है, उसकी क्वालिटी है ट्रूथ, सत्यनारायण, है ना? तो ये जो ट्रूथ है ना, टू बी ट्रू अनटू योरसेल्फ, यही स्पिरिचुअलिटी है। Wow.
This is a very good starting point for someone who's just beginning their journey in spirituality, just to be true to yourself. Yeah. Yeah. So, Chitra, how I would like to understand, how are spirituality and healing connected? Because you hear a lot of people using these words interchangeably. Yeah. तो इट इज लाइक दो रिवर्स हैं, साथ साथ चल रही हैं, और फिर जहाँ पे वो मीट हो जाती हैं, संगम बन जाता है ना। तो स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग कहीं ना कहीं जाके मीट हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कर्म योग और भक्ति योग और क्रिया योग एंड ज्ञान योग, ये सारे जाके मीट हो जाते हैं एक सागर में। यू स्टार्ट फ्रॉम वट एवर, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द हीलिंग वर्ल्ड, जैसे आई डिड। लाइफ टुक मी टू द हीलिंग स्पेस, है ना। पहले एज एन एलोपैथिक नर्स, then as a homeopath, then as alternative therapist, then with ayurveda। तो ये क्या है कि वो हीलिंग से ही, जैसे मैं रेकी में आई जैसे, और वो रेकी की जो एक व्हेन आई एक्सपीरियंस दैट वाइटल फोर्स इन माय हैंड्स, तो जो मैं होम्योपैथी में हीलिंग में वाइटल फोर्स की बातें करती थी, वो सडनली मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो Wow. दैट वो जो प्रत्यक्ष में जब आपके साथ चीजें होने लग जाती हैं, विच मीन्स योर ओन एक्सपीरियंस, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस आपका हो रहा है, कोई भी एक्सपीरियंस है, वही आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाकी तो सुनी सुनाई बातें हैं, परोक्ष ज्ञान है। सो सुनी सुनाई True. बातें हमको इंस्पायर कर सकती हैं, हमें कुछ ये कि हाँ ऐसा कुछ है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। बट हम तो वही है ना जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस है। तो स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, बट नॉट नेसेसरली कि दोनों मिल रहे होते हैं। जहां मिल गया ना, तो उसका गंगा स्नान हो गया। No. Yeah. So true. I've yet to experience something so tangible in my experience yet. But I do get these small fleeting moments where I feel, that uh, I'm I'm learning, or I can actually experience a little small things for those fleeting moments where I feel that, yeah, like my spiritual growth is happening. And it's always so heartfelt, always, because I've been on this journey for so long, and yet I still feel that I'm just starting off. या, एंड दैट्स फॉर ऑल ऑफ अस। आई ऑल्सो फील दैट आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, बिकॉज ये जो है ना, ये सागर है। एट एनी स्टेज एंड हुएवर, तुम किसी का भी नाम ले लो ना, इट इज लाइक दे आर जस्ट स्टार्टिंग ओवर। ऐसा देर इज, बिकॉज वो जो जर्नी है ना, ये, इसको तो इसके लिए तो पता नहीं कितनी जूनियों में जन्म लेना पड़ता है आपको, है ना। तो ये ये तो इज लाइक नेवर, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं तो अब ज्ञानी हो गया। वी आर ऑल जस्ट स्टार्टिंग ओवर, वेर एवर वी आर स्टार्टिंग ओवर फ्रॉम, बट वी आर स्टार्टिंग ओवर। देर इज ऑलवेज सो मच मोर, सो मच मोर। So, Chitra, I have this question. Most people turn to spirituality when they're going through tough phases of their life. Either it is if they're going through some painful experiences, or some life changing, or some loss that they may be facing in life. So I'm just curious to know, Chitra, does one move to spirituality only when through pain, or does all or spirit one can also become spirituality? Can it arise through joy also? तो क्या है ना शिखा, कि अब जैसे अगर मेरी लाइफ है और बहुत बढ़िया चल रही है, तो मैं जाके डॉक्टर के पास तो नहीं बैठूंगी ना, दवाई तो नहीं खाऊंगी। राइट, अब बढ़िया चल रही है, हेल्थ अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी विल पावर से चीजें हो रही हैं, मेरी चॉइस से हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। बट जब वो नहीं हो रहा है, जब मेरी विल पावर अब काम नहीं कर रही है, जब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कुछ, फिर मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड होती हूँ जो अनफैथमेबल है।
जो मुझे लगता है कि वे ये मुझसे ज्यादा जानता है, ये इसकी सोच मुझसे ज्यादा बड़ी है। सो दैट इज हाउ वी जस्ट गो। अभी स्पिरिचुअलिटी की मतलब क्या है, वी गो टू सम टीचर जिसे हम सोचते हैं कि ये शायद मुझे कुछ शांति की बातें बताएगा, क्योंकि वो टीचर्स की शक्लें भी ऐसी होती है ना, वो लग रहे होते हैं कि पता नहीं बिल्कुल ही स्वर्ग लोक से पधारे, है ना। तो so that is how we get into, like, even from in my case, my boys were in the boarding school and दुखी थे वो, और वो दुखी थे तो फिर मैं भी दुखी थी। और मेरे पास बट कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि मैं उनको वहां से निकालूं और फिर से किसी स्कूल में डालूं, क्योंकि एडमिशन्स भी इतने मुश्किल होते हैं। एंड ऑल्सो आई डेंट वांट देम टू बिकम दैट वीकलिंग कि अब तुम जरा सा भी तुमने ची बोला तो मम्मा तुम्हें निकाल लेगी, काइंड ऑफ। तो बड़ा सा एक मेरा बड़ा कश्मकश का फेज था वो। So that is how my husband was posted in Ladakh, and I thought कि सुनते हैं जैसे बातें कि यार शायद मेडिटेशन इज द आंसर, है ना, क्योंकि नाम तो सुना ही होता है, हम कर नहीं रहे हैं बट सुना तो है ही है, कोई ना कोई तो बात कर ही रहा है उसके बारे में। तो दैट इज हाउ व्हेन आई फर्स्ट लर्नड दैट मेडिटेशन, बहुत ही सिंपल मेडिटेशन थी जो उन्होंने मुझे सिखाई, बट एक अंदर शांति आई। और उसके बाद क्या हुआ, बाय चांस माय यंगर सन हैड जॉन्डिस, और रेकी केम इनटू माय लाइफ। तो क्या है ना कि आपको वो खुद ही खींचता रहता है, ऐसा नहीं कि आप ढूंढ रहे हो, वो ही आपको खींचता है। और जब आप थोड़े से दुखी होते हो तो आप चारों तरफ हाथ पैर मारते हो ना, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाओगे, कोई वैद्य के पास भी जाओगे, डॉक्टर के पास भी जाओगे, शनि को भी कुछ चढ़ाओगे, हीलर के पास भी जाओगे। सब सब करोगे, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सो ऐसा होता है। दूसरा है कि कई बार आप जस्ट लाइक से पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो मेरी लाइफ में ऐसे नहीं आई कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी। मैं तो ऑलरेडी अपनी रेकी में बड़ी खुश थी और अपने अच्छे से चल रही थी। बट देन वो बुक्स मुझे अच्छी लगने लगी, डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक्स पढ़ने लगी, एंड देन समबडी टॉक्ट अबाउट डॉक्टर न्यूटन, एंड सो व्हेन आई वेंट देयर, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो मतलब मस्ती के लिए आए हैं, right? But then, as you keep growing deeper and those things unfold, तो पता चलता है कि हाँ, देर आर थिंग्स, मेरी साइकी में जो काफ़ी चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं, और उनको निकलना है, और उनसे मुझे कुछ सीखना है। सो वन ग्रोज इन दैट, बट यस, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। But Chitra, why does healing seem so tough? Like, when I look around at my friends who are leading such carefree lives and, they're not on this journey, they seem to be so much happier. Whereas someone who's working with self awareness and, truly getting to know themselves, somehow, it feels really hard. And I hear this from some of my friends as well. They say that walking this path is so hard. So does it get easier later? Does it get better after a while? How does it work? सो एज दे से, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो जब हम इग्नोरेंस में रहते हैं, और हम सब रहे हैं और अभी भी रहते हैं टू सम एक्सटेंट, ऐसा तो नहीं है कि हम 24 घंटे कॉन्शियस हैं, अभी भी इग्नोरेंस में चले जाते हैं। तो वेन एवर वी आर इन इग्नोरेंस, तो हम सारी उंगलियां हमारी दूसरों पे पॉइंट करती हैं, प्रोजेक्शन में रहते हैं हम, सारी प्रॉब्लम वर्ल्ड में दिखाई देती हैं, है ना। तो एक तरह से आप बड़े खुश हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, एंड देन यू डू थिंग्स दैट यू एंजॉय, यू नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट कि भी ओके, चेक योर इमोशंस, चेक योर, तो यू प्रोजेक्टिंग एवरीथिंग ऑन टू अदर्स। हमने सबने किया है, राइट, वो हमारा हैप्पी स्पेस है, इसीलिए बारी बारी वहां चले जाते हैं। बट जब हम कि द वर्ल्ड इज अ मिरर, पहली बारी जब सुनते हैं तो लगता है नहीं नहीं, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट फिर धीरे 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 यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इट्स अ बूमरैंग, एवरीबडी इज अ टीचर, लाइक
तो फिर आपकी एक थिंकिंग चेंज हो जाती है, फिर आप हर चीज को अपनी तरफ डायरेक्ट करते हैं, है ना, कि अगर एक उंगली दूसरे की तरफ जा रही है तो भाई चार मेरी तरफ हैं, उनको थोड़ा देखो। तो शुरू में अपनी डार्कनेस को देखना बहुत टफ लगता है। कार्ल युंग ने भी ये कहा, इस कि अपनी अनकॉन्शियस को, अपनी सब कॉन्शियस को कॉन्शियस करना ही सबसे बड़ा काम है। और वो इजी नहीं है, क्योंकि दूसरे में डार्कनेस देखना तो बहुत आसान है। वो कि ब्लेमिंग देम, कि सेइंग कि उसकी तो क्या अपब्रिंगिंग थी, उसका तो क्या था। अपने में डार्कनेस देखना कि ओ माय गॉड मैं ऐसी भी हूं, अपना 360 डिग्री देखना टफ है टफ। Yeah, very true. बट अब मेरे जैसे एक टाइम आता है आपका थ्रेशोल्ड से, जब फिर आप कहते हो अच्छा ये भी है, आहा अभी तो ये बाकी है, अभी तो दिख रहा है, अभी ये भी है। एंड देन यू ऑल्सो जस्ट वेलकम देम ऑल टू योर डाइनिंग टेबल, कि देयर आर सो हाँ, मेनी पार्ट्स ऑफ मी, द होल यूनिवर्स लिव्स इन मी। जो भी कुछ इस मैनिफेस्ट यूनिवर्स में है तो मेरे भी अंदर है। वो एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है इज अ डिफरेंट स्टोरी, पर मेरे अंदर है। जो भी मैं बाहर देख रही हूँ वो मेरे अंदर है। अभी वो ड्राइविंग सीट में बैठा है कि अभी वो पीछे पैसेंजर सीट में सो रहा है, दैट्स अ डिफरेंस। है सबके अंदर, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर नहीं है, वट एवर इज इन द वर्ल्ड। क्योंकि वी आर, इस लाइक कि रोटी का अगर एक टुकड़ा है तो उसके अंदर रोटी की सारी कहानी है ना। तो ऐसे हम भी, अगर वो एक लिटिल ड्रॉप ऑफ कॉन्शियसनेस है तो पूरी कॉन्शियसनेस ही है ना उस ड्रॉप में। तो उसको, यस, उसको गुडी गुडी को देखना, एक स्पेक्ट्रम के हाई को देखना और सोचना कि आई एम देयर। मे बी यू आर देयर, लाइक यू सेड, फ्लीटिंगली मे बी यू टच इट, बट दैट्स नॉट। आप माउंटेन टॉप पे चढ़ते हो तो माउंटेन टॉप पे घर नहीं बना लेते हो, वापिस आते हो नीचे ना। yeah. So true. दोनों का अपना मजा है, चढ़ने का भी मजा था, वहां पे रहने का भी मजा था, थोड़े दिन जितना रहे, थोड़ा देर उतरने का भी मजा है, और वापस वैली में भी अपना मजा है। तो हर चीज का बस आनंद लेना है, सच्चित आनंदा। So true. Chitra, what, as per you, are the biggest misconceptions about spirituality that are going around? तो ये अगर मैं अपने ही लेंस से देखूं तो पहले तो अपनी लाइफ बहुत, लाइक यू सेड, वो इग्नोरेंस वाली लाइफ थी, ब्लिसफुल, बहुत अच्छा, प्यार में है, सब अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जैसी जैसी बाकियों की है वैसी मेरी है, पढ़ाई बच्चों की, ये मतलब जस्ट सिंपल लाइफ। फिर ये स्पिरिचुअलिटी में आ गए। मैं तो खैर हीलिंग से ही आई, रेकी के उससे आई। तो फिर हर चीज में वो लगने लगा कि ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों है। और मेरा तो बिकॉज वी वर इन द आर्मी, मैं बहुत ही ब्लिसफुल आर्मी वाइफ थी, बहुत मजा कर रही थी, एंड सडनली नाउ आई स्टार्टेड फाइंडिंग फॉल्ट्स देयर। हर चीज में वो गुस्सा आने लगा, चिढ़ आने लगी। फिर क्योंकि माय हस्बैंड रिप्रेजेंट्स द आर्मी, तो फिर हस्बैंड से भी कि भी तुम क्यों नहीं इसको ऐसा करते हो, तुम क्यों नहीं ऐसा करते हो, इट्स लाइक। तो वो सब कहानी सी एक शुरू हो गई, राइट। और मैं तुम्हारा क्वेश्चन भूल गई हूँ कि तुमने क्या पूछा था, बोलो फिर से। Yeah, my question was, but what are the biggest misconceptions about राइट, spirituality? राइट। तो मिसकंसेप्शन है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे तो आप बिल्कुल ही खुश हो जाओगे। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दे रही थी, मेरा नहीं हुआ ऐसा। इनफैक्ट जैसे आप पहले कह रहे थे, मैं और दुखी हो गई। और मतलब जो मैं ऐसी खिलखिलाती सी थी, और अब मैं मतलब जो मैं अपने हस्बैंड को कभी भी किसी भी तरह से भी नैग नहीं करती थी या उसमें कोई फॉल्ट नहीं देखती थी, अभी सडनली मैं करने लगी, मुझे गुस्सा आने लगा। इनफैक्ट सोमनाथ का तो एक फेमस डायलॉग था कि जब तुम ये आई एक्सेप्ट नहीं कहती थी ना, तब कितनी एक्सेप्टिंग थी। उसको तो मतलब जैसे मुझे आर्मी से चिढ़ हो गई थी, उसको मेडिटेशन से चिढ़ हो गई थी कि ये मेडिटेशन में बैठी है, इसका मतलब कुछ तो इसका चल रहा है अंदर।
क्योंकि अगर मेरे अंदर कुछ वो तूफान आता था तो मैं मेडिटेशन में बैठ जाती थी या अपना जर्नल लेके बैठ जाती थी। तो अगर वो मुझे इन दो पोजीशन में देखता था ना, तो उसको कि इसका तो कुछ मतलब कहानी चल रही है, और उसको उसको उसमें फिर इरिटेशन होती थी। तो लाइक बोथ ऑफ अस वर काइंड ऑफ ट्रिगरिंग ईच अदर इन डिफरेंट मैनर। तो ये बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे तो आप वो बुद्धा फेस बन जाएगा, और पता नहीं क्या ही। वो तो यू आर स्टिल प्रिटेंडिंग। दिस इज स्पिरिचुअल बाईपासिंग। रियल जब अपने ट्रूथ में आओगे ना, जब रियलिटी को देखोगे, जब सीयर बनोगे, तो जैसे आपने कहा, वो तो आसान नहीं है। उसमें तो सारे शेड्स आएंगे, ऑल शेड्स ऑफ ग्रे, है ना। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो भी थोड़ा सा उसको, आई वुड से, कोई तो है जो एक्चुअली जॉयफुल हैं, कोई है जो पूरे एक्टर्स हैं। क्योंकि आप तो उनके पूरा घर की पूरी 24 आवर्स तो नहीं रह रहे हो ना, 360 डिग्री तो नहीं देख रहे हो ना। तो जो फेस दिखाई दे रहा है, आप सोच रहे हो हाँ हाँ हाँ, मैं भी ऐसी बन जाऊंगी, मैं भी ऐसी बन जाऊंगी। तो मैंने भी ये बहुत किया है, अनटिल आई रियलाइज कि मुझे बनना ही नहीं है किसी के जैसा। टू बी एंड हाउ नॉट टू बी, हाउ Yeah. टू बी, हाउ नॉट टू बी, दोनों ही सीखना है मुझको जिंदगी में। How beautiful to be and not to be. या Yeah. Chitra, you used the word spiritual bypassing, and this is something which one doesn't understand easily. Some people hide under the garb of spirituality, under the garb of spiritual practices. So, from your lived wisdom and from your experiences, what is spiritual bypassing? If you could explain that with some daily examples, for us to really understand whether we are spiritually bypassing or we are covering ourselves under the garb of spirituality. Are we really getting to know ourselves? या What's the difference? तो ऐसा ही शिखा, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक अबाउट अदर्स, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कोई रियली में अराइव्ड है या कोई बाईपासिंग कर रहा है। जब तक मैं किसी को अच्छे से नहीं जानती हूँ तो मुझे नहीं मालूम है। राइट। बट मैं सिर्फ अपना तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि एक तो जो नया नया मुल्ला होता है, जब हम नए नए किसी चीज में जाते हैं, जैसे अभी ये पॉडकास्ट भी ले लो, क्योंकि जब ये नए नए उसमें है तो मैं यहाँ शेयर करूंगी, वहाँ शेयर करूंगी, उसको बोलूंगी, उसको ये करूंगी, मतलब मैं इतना हाइप, क्योंकि मुझे अंदर से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। राइट। पर जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है, होते जा रहा है, फिर आप धीरे धीरे वो हो जाओगे कि ठीक है, तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपकी एक शांति आएगी, आपका ठहराव आएगा। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कर रहा है ना। तो ये आ, जब तक आप ढिंडोरे पीट रहे हो ना किसी भी चीज का, जैसे मैं अपना भी, अगर मैं हीलिंग प्रैक्टिस का भी लूँ, देयर वाज अ टाइम आई वाज लाइक टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट। अब मुझे कोई, अभी मुझे है कि जो मेरा है मेरे पास आता है, और आते भी हैं, मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करती हूँ, मैं कोई वो नहीं करती हूँ, और आई एम वेरी सेटल्ड इन दैट। राइट। अब ये नई एक्साइटमेंट आई है, जैसे पहले जब मैंने बुक्स भी लिखी थी, ओ माय गॉड, मैं सबको अपनी बुक्स गिफ्ट करती थी कि मुझे लगता था वो पढ़ेंगे, बट कोई नहीं पढ़ता है। ये भी अगर मैं शेयर भी कर दूं किसी को ये पॉडकास्ट का लिंक, नहीं देखते लोग, हमारे अपने ग्रुप में भी सारे नहीं देखते हैं। सो यू सी, टू एक्सेप्ट दैट कि जो भी हो रहा है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। तो जितनी आपकी पीस बढ़ती जाएगी ना, तो दैट इज, आई सी, दैट इज ग्रोथ। एंड देर आर ऊपर नीचे बहुत चीजें होती रहती हैं, है ना। तो आई 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 डोंट नो अबाउट कौन कौन कर रहा है स्पिरिचुअल बाईपासिंग, उन्हीं को पता होगा, या नहीं, अगर आज पता है तो पता चल जाएगा। लाइफ लाइफ जो है ना, Teaches you everything. लाइफ मतलब सबको सबको ले आती है वो, ऊंट पहाड़ के नीचे सारे आते हैं।
So, Chitra, I'd like to ask, if I were to ask you, like for our viewers or for our listeners today, what are the top three practices or the top three uh, insights that you feel will help anyone to lead a more meaningful, peaceful, and connected life? What would those three तो एक principles be? तो एक तो हमने पहले ही बोला, बी ट्रू अनटू योरसेल्फ, है ना। पर जब आप बी ट्रू अनटू योरसेल्फ होने की कोशिश करोगे, तो पीछे से पूरे जो आपके वो है ना, फियर्स हैं, या जो आपकी कंडीशनिंग है, Insecurities हैं. इनसिक्योरिटीज हैं, वो सारी सामने आएंगी, है ना। तो इतना आसान नहीं रहेगा। सो यू नीड पीपल हु आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। जैसे अब हम अपने ग्रुप में, अपने संघा में, क्योंकि आपको लग रहा है कि भी हाँ, हम आम में सब नंगे हैं, मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ। सो व्हेन यू हैव अ ग्रुप, अ संघा, अ कम्युनिटी, ना, जहाँ पे सब सेम चीज कर रहे हैं, जैसे अब कोई म्यूजिक सीख रहा है तो वो उस जगह जाएगा ना जहाँ सारे म्यूजिक सीख रहे हैं, या कोई फिटनेस में जा रहा है तो वो उन लोगों के साथ बात करेगा जो फिटनेस में है। तभी तो उसका वो रहेगा ना। जैसे हम योगा कर रहे थे तो सौरभ के साथ, तो कि मेरा अपना रूटीन तभी बनेगा ना। सो यू नीड दैट दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर वॉकिंग द सेम पाथ। तो हाँ. जय माता दी, जय माता दी बोलते हुए चलते चलो, चलते ना ऐसे। तो ऐसे ही हम भी एक दूसरे को बोलते हुए, एक दूसरे को बोलते हुए डेली बोलते हैं। सो यू नीड अ संघा। तो अभी मुझे बुद्धा के ही वर्ड्स याद आ रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो पहले तो बुद्धम की शरणम में जाओ, मतलब सत्य की शरण में चले गए, ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, है ना। देन संघम शरणम गच्छामि, संघ के उसमें चले गए, है ना। और तीसरा पता नहीं क्या है। तो Uh, बट मैं अगर वो गच्छामी को छोड़ दूं, तो द थिंग इज कि मेरे लिए वो तीसरा है, दूसरों को भी छोड़ दो। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरे, उनको छोड़ दो। पूरा ध्यान अपनी तरफ रखो, मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो तीन चीजें, सत्य की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, और दूसरों को छोड़ दो। so so profound. And I think दूसरों को छोड़ना सबसे मुश्किल होता है. यस, इसीलिए अब हम, I'll take your last question if you have any, Yeah. or Yeah, no, thank you so much, Chitra, for sharing your wisdom with us today. And so, for our viewers, if you feel that you benefited from this conversation, please do share it with someone who may need it. And one question I'd like to leave you all with, what is the one thing that you could do, to lead a more meaningful life? So we look forward to your comments on our podcast today. And till then, keep growing, keep exploring, and keep going deeper. So thank you so much. Thank you so much, Chitra, for being here today. thank you, Shikha. I thoroughly enjoyed our conversation. Thank you. It was my pleasure. Thank you.